नमस्कार बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे कैपिटल बजटिंग के टेस्ट पेपर को। अगर आपके पास इसका टेस्ट पेपर नहीं है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका टेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू चूज बिटवीन टू मशीन A and B. The two machines are designed differently but have identical capacity and do exactly the same job. Machine A cost rupees 6 lakh and will last for 3 years. Its running cost rupees 1 lakh 20,000 per annum. Machine B cost rupees 4 lakh, life 2 years. Cost rupees 1 lakh 80,000 is running cost per annum. These are real cash flow. The costs are forecast in rupees of constant purchasing power. Opportunity cost of capital is 10%. Which machine company should buy? Ignore tax. Equivalent annual cash outflow. Machine A. Machine A. Annual cost. मशीन ए की कॉस्ट 6 लाख और उसकी लाइफ 3 ईयर्स है। रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल की 10% है। 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 3 ईयर्स के पीवी फैक्टर की टोटल 2.487। 6 लाख डिवाइडेड बाय 2.487, it is 2,41,255. Now annual running cost. Annual running cost is 1,20,000 and total equivalent annual cash outflow is 361,255. Now we calculate for machine B. Machine B. Annual cost. Cost of machine B is rupees 4 lakh और इसकी लाइफ 2 ईयर्स है। 2 ईयर के पी फैक्टर की टोटल 1 डिवाइडेड बाय 1.1, it is 1.736. 4 lakh divided by 1.736, it is 2,30,415. Annual running cost. Annual running cost is rupees 1,80,000 and equivalent annual cash outflow 410,415. इक्विवेलेंट एनुअल कैश आउटफ्लो मशीन ए का मशीन बी से कम है, सो कंपनी शुड परचेज मशीन ए। करेक्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ANP Limited is providing the following information: annual cash inflow 96,000, life 5 year, internal rate of return 15%, profitability index 1.05, NPV, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और पे बैक पीरियड हमें कैलकुलेट करने। स्क्रैप वैल्यू इज निल। फाइंड द मिसिंग वैल्यू। क्यूमुलेटिव पी फैक्टर 15, 14% और 13% पर हमें दे रखा है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, मीन्स कैश आउटफ्लो। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कैश आउटफ्लो इक्वल्स टू
annual cash inflow multiply by cumulative PV factor of IRR. Annual cash inflow is 96,000, IRR 15%, उस पर PV फैक्टर की टोटल होती है 3.353. 96,000 divided multiply by 3.353, it is rupees 3,21,888. फिर हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू. नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इट इज present value of cash inflow divided by present value of cash outflow. Profitability index 1.05 given in question. Present value of cash inflow हमें कैलकुलेट करना है और कैश आउटफ्लो हमने कैलकुलेट किया 321,888. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल्स टू 321,888 मल्टीप्लाई बाय 1.05. इट इज रुपीज 3,37,982. NPV equals to 337,982 present value of cash inflow minus 321,888 present value of cash outflow. It is rupees 16094. फिर हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को. कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल्स टू एनुअल कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर of cost of capital. Present value of cash inflow is 337,982. Annual cash inflow is 96,000 multiplied by cumulative PV factor of cost of capital. So cumulative PV factor of cost of capital equals to 337,982 divided by 96,000. It is 3.521. 3.521 13% पर cumulative PV factor की total होती है. It means cost of capital equals to 13%. Cost of capital equals to 13%. Last we have to calculate payback period. Payback period equals to cash outflow divided by annual cash inflow. Cash outflow equals to 321,888 divided by annual cash inflow 96,000. 321,888 divided by 96,000. It is 3.353 years. Correct? Now we solve question number 3. Shiva Limited is planning its capital investment program for next year. It has 5 projects, all of which give a positive NPV at the company cutoff rate of 15%. The investment outflow and present value being as follows. 5 प्रोजेक्ट है. किस प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट होगा वो दे रखा है, एनपीवी दे रखी है. कैपिटल is 1,20,000 available. You are required to optimize the return from a package of project within the capital spending limit. The projects are independent of each other and are
डिविजेबल। हमें डिविजेबल प्रोजेक्ट के केस में पीआई के बेस पर रैंक देनी होती है और उसके बाद प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना होता है। प्रोजेक्ट ए, बी, सी, डी और ई। कैश आउटफ्लो 50,000, 40,000, 25,000, 30,000 और 35,000। हम पीवी ऑफ कैश इनफ्लो को कैलकुलेट कर सकते हैं एनपीवी और कैश आउटफ्लो दोनों को ऐड करके। 15,400 और 50,000 को ऐड किया तो 65,400, 58,700, 35,100, 41,200 और 54,300। Now profitability index 65,400 divided by 50,000, it is 1.308. 58,700 divided by 40,000, 1.4675. 35,100 divided by 25,000, 1.404. 41,200 divided by 30,000, 1.373. And 54,300 divided by 35,000, it is 1.551. रैंक सबसे हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ई का, इसको देंगे हम फर्स्ट रैंक, बी को देंगे सेकंड रैंक, सी को देंगे थर्ड रैंक, डी को देंगे फोर्थ रैंक और ए को देंगे फिफ्थ रैंक। नाउ इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इज 1,20,000। सबसे पहले हम 35,000 इन्वेस्ट करेंगे प्रोजेक्ट ई में। 1,20,000 माइनस 35,000, रिमेनिंग कैपिटल इज 85,000। सेकंड हम इन्वेस्टमेंट करेंगे बी में 40,000 का, माइनस 40,000। नाउ रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट इज 45,000। थर्ड रैंक सी को, जिसमें 25,000 इन्वेस्ट करने, हम 25,000 इन्वेस्ट करेंगे, रिमेनिंग इज 20,000। फोर्थ रैंक के प्रोजेक्ट डी, जिसमें इन्वेस्टमेंट करना है 30,000 बट रिमेनिंग अमाउंट इज 20,000, तो हम 20,000 को इन्वेस्ट करेंगे प्रोजेक्ट डी में। ए में इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं करेंगे और ये हमारा हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। P Company Limited is considering to select a machine out of 2 machines. The company cost of capital is 12% and corporate tax rate is 30%. Other information relating to both machine is as follows. Machine A, machine first और machine second. मशीन की कॉस्ट दे रखी है, एक्सपेक्टेड लाइफ 5 ईयर और 6 ईयर, एनुअल इनकम बिफोर टैक्स एंड डेप्रीसिएशन, मतलब आपको प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन दे रखा है 345 एंड 455. डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR. एडवाइज द मैनेजमेंट ऑफ P Limited एज टू विच मशीन दे शुड टेकअप. सबसे पहले तो हम मशीन फर्स्ट के कैलकुलेट करते हैं, फिर हम मशीन सेकंड के कैलकुलेट करेंगे. मशीन फर्स्ट, ईयर, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन लेस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स लेस करेंगे, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में डेप्रीसिएशन ऐड करेंगे तो कैश इनफ्लो, पीवी फैक्टर की रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू. ईयर 1, 2, 3, 4 एंड 5. Profit before depreciation, it is 3,45,000 every year. यहाँ कैश इनफ्लो इक्वल होगी एवरी ईयर, बट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है, इसीलिए हमें
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की रिक्वायरमेंट एवरी ईयर की होगी। डेप्रीसिएशन 10 लाख मशीन की कॉस्ट, इसका वैल्यू नहीं दे रखी तो जीरो, लाइफ 5 ईयर, सो डेप्रीसिएशन एवरी ईयर इज 2 लाख। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 145 every year. टैक्स की रेट 30%, 145 मल्टीप्लाई बाय 30%, 43,500 टैक्स एवरी ईयर। Net profit 1,01,500 every year. $1,01,500 every year. Now cash inflow. Depreciation add करेंगे तो 3,01,500 every year. Present value factor and then present value. Present value factor rate is 12%. 1 divided by 1.12, it is 0.893, 0.797, 0.712, 0.636 and 0.567. 3,01,500 multiplied by 0.893 equals to 2,69,240. 3,01,500 multiplied by 0.797, 2,40,296. 2,14,668. 191,754. 1,70,951. 269,240 plus 240,296 plus 214,668 plus 191,754 plus 170,951. Total is 10,86,909. सबसे पहले हमें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करना है। इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो जो है मशीन फर्स्ट में वो है 10 लाख। हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को क्यूमुलेटिव करते हैं। फर्स्ट ईयर 269,240, सेकेंड ईयर प्लस 240,296 प्लस थर्ड ईयर 214,668 प्लस फोर्थ ईयर 191,754। फोर्थ ईयर तक हमने ऐड किया, इट इज 915,958 4 ईयर plus remaining amount is 84042 and fifth year it is 170,951. 4.49 year discounted payback period. Now we have to calculate NPV. NPV equals to present value of cash inflow minus present value of cash outflow. Present value of cash inflow 10,86,909 minus 10 lakh equals to 86,909. Then we have to calculate IRR, internal rate of return. हमने अभी जो किया वो 12% पीवी फैक्टर की रेट से किया। अब हम इसको 15% की रेट से करते हैं क्योंकि हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की टोटल को कम करना है, 10 लाख पर लेकर आना है।
तो यहाँ पर हम अलग अलग ईयर की टोटल नहीं लिखेंगे. 1 to 5 कैश इनफ्लो. इट इज एवरी ईयर 3,01,500. 15% PV factor and present value of cash inflow. 5 ईयर पर 15% के PV फैक्टर की टोटल 1 डिवाइडेड बाय 1.15 3.352. 3,01,500 multiplied by 3.352. It is 10,10,628. अभी भी ज़्यादा है तो हम इसको 16% पर करते हैं क्योंकि केवल 10,000 रुपीज़ ही ज़्यादा है. पी फैक्टर और पीवी ऑफ कैश इनफ्लो. 16% पे 1 डिवाइडेड बाय 1.16 3.274. 3.274 multiplied by 3,01,500. It is 9,87,111. IRR equals to 15% plus 1% divided by 987,111 minus 10,10,628. 23,517 मल्टीप्लाई बाय हमने बेस लिया 15 को, वहाँ से 10 लाख का गैप है 10,628. सो इट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 23,517 मल्टीप्लाई बाय 10628 प्लस 15. 15.45% इज IRR. अभी हम ABC मशीन सेकंड का भी कैलकुलेट करते हैं. मशीन सेकंड कैश आउटफ्लो. कैश आउटफ्लो इज ₹15 lakh. ₹15 lakh. ईयर वाइज 1 to 5 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ. डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है. प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन. प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन इज 4,55,000. 4,55,000. Its life is 6 year. 4,55,000. Depreciation. Machine cost 15 lakh, scrap value 0 and life 6 year. Every year depreciation is 2,50,000. Depreciation every year is 2,50,000. Profit before tax 4,55,000 minus 2,50,000. 2,05,000. Tax 2,05,000 multiply by 30%. 61,500. Every year it is 61,500. Net profit 143,500 every year. Now cash inflow. Net profit plus depreciation 143,500 plus 2,50,000. Every year cash inflow is 3,93,500. 3,93,500.
PV factor, rate 12%, 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567, 0.507. Present value of cash inflow 393,500 multiplied by 0.893, 3,51,396, 3,13,620, 2,80,172, 2,50,266, 2,23,115, 1,99,505, 351, 396 plus 313,620 plus 280,172 plus 250,266 plus 223,115 plus 199,505. It is 16,18,074. डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड टोटल 15 लाख का इन्वेस्टमेंट है. हम पीवी ऑफ कैश इनफ्लो को क्यूमुलेटिव करते हैं. 351 396 प्लस 313 620 प्लस 280 172 प्लस 250 266 प्लस 223 115 प्लस 5 years plus remaining is 81431 divided by 199,505. It is 5.40141 year. Second, we have to calculate net present value. Net present value of cash inflow 1618074 minus present value of cash outflow 15 lakh equals to 118074. फिर हमें कैलकुलेट करना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ईयर 126. कैश इनफ्लो एवरी ईयर इज 393,500. 15% PV फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू. 15% पे PV फैक्टर की टोटल 3.352. ओके, इट इज फॉर 6 ईयर. 1 डिवाइडेड बाय 1.15. It is 3.784. 3,93,500 multiplied by 3.374. It is 13,27,669. 15 लाख से कम है तो हम यहाँ पर IRR को कैलकुलेट करते हैं. IRR इक्वल्स टू 12% प्लस 3% डिवाइडेड बाय 12% 1618074 माइनस 15 पे 13,27,669. इट इज़ 290,405 मल्टीप्लाई बाय 12 को हमने बेस लिया तो 1618074 माइनस 15 लाख इट इज़ 118074. 118074 equals to 3 divided by 290,405 multiplied by 118074. 13.22%. अब हम डी पॉइंट को सॉल्व करते हैं. प्रोजेक्ट फर्स्ट, प्रोजेक्ट सेकंड. मशीन फर्स्ट और मशीन सेकंड. एज पर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड
as per NPV and as per IRR. डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मशीन फर्स्ट का 4.49, मशीन सेकंड का 5.41, तो मशीन फर्स्ट का कम है तो रैंक देते हैं हम इसको फर्स्ट रैंक और इसको सेकंड रैंक। एनपीवी मेथड, एनपीवी मशीन फर्स्ट का 86,909, इसका 118074, तो इसको देंगे हम फर्स्ट रैंक और इसको देंगे हम सेकंड रैंक। आईआरआर मशीन फर्स्ट की 15.45 और मशीन सेकंड की 13.22, तो इसको देंगे हम फर्स्ट रैंक और इसको देंगे हम सेकंड रैंक। हर मेथड के हिसाब से हमने मशीन फर्स्ट और सेकंड को रैंक दिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। सूर्या लिमिटेड इज परचेज ए मशीन, टू प्रपोजल आर अवेलेबल, ईच कॉस्टिंग ₹10 lakh. In comparing the profitability of the machine, a discounting rate of 10% is to be used and machine is to be written off in 5 years by straight line method of depreciation with nil residual value. कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स का मतलब कैश इनफ्लो ही होता है। आर एक्सपेक्टेड एज फॉलोज, प्रपोजल फर्स्ट प्रपोजल सेकंड दोनों का कैश इनफ्लो दे रखा है। इंडिकेट विच मशीन वुड बी प्रॉफिटेबल यूजिंग द फॉलोइंग मेथड ऑफ रैंकिंग, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, पे बैक, एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं पे बैक पीरियड। प्रपोजल फर्स्ट का कैलकुलेट करते हैं, कैश इनफ्लो डायरेक्टली दे रखा है हमें प्रपोजल फर्स्ट का और फिर प्रपोजल सेकंड का। 10 लाख इन्वेस्ट हो रहा है प्रपोजल फर्स्ट में, फर्स्ट ईयर इनफ्लो 3,20,000 प्लस सेकंड ईयर 4,05,000। अब थर्ड ईयर को ऐड करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखते हैं 2 years प्लस रिमेनिंग इज 2,75,000 and third year inflow is 5,10,000. It is 2.54 year. Now proposal second. Investment is 10 lakh. First year 1,05,000. Second year 3 lakh. Third year 4,10,000. 3 years. Balance amount is 1,85,000 and fourth year inflow is 5,90,000. It is 3.31 year payback period. Now we have to calculate NPV, net present value, year, machine, proposal 1 और प्रपोजल सेकंड, कैश इनफ्लो, पीवी फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो, पीवी फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। दोनों में पीवी फैक्टर वैसे कॉमन ले सकते थे क्योंकि पीवी फैक्टर की रेट तो दोनों में सेम है। ईयर 1, 2, 3, 4, 5, कैश इनफ्लो 3,20,000, 4,05,000, 5,10,000, 3 lakh and 2 lakh. Discounting rate is 10%, so it is 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 and 0.621. 3,20,000 multiplied by 0.909, it is 290,880. 4,05,000 multiplied by 0.826, 334,530. 5,10,000 multiplied by 0.751, 383,010. 3 lakh multiplied by 0.683, 2,04,900.
and 2 lakh multiplied by 0.621, it is 124,200, and total is 13,37,520. Proposal second, 1,05,000, then 3 lakh, then 4,10,000, 5,90,000, and 4 lakh. P factor same rate 10%, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621. 1,05,000 multiplied by 0.909, 95445. 3 lakh multiplied by 0.826, 2,47,800. 4,10,000 multiplied by 0.751, 307,910. 5,90,000 multiplied by 0.683, 4,02,970, and 4 lakh multiplied by 0.621, 248,400, and total is 13,02,525. NPV equals to present value of cash inflow minus present value of cash outflow. Proposal first, 13,37,520 minus 10 lakh equals to 337,520. Proposal second, 13,02,525 minus 10 lakh equals to 3,02,525. C point. We have to calculate profitability index. Profitability index. PI equals to present value of cash inflow divided by present value of cash outflow. First, 13,37,520 divided by 10 lakh, 1.338. Second, 13,02,525 divided by 10 lakh, 1.303. D point. Last is ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए हमें नेट प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होगी. क्वेश्चन में कैश इनफ्लो दे रखा है. कैश इनफ्लो हम नेट प्रॉफिट में जब डेप्रीसिएशन को ऐड करते हैं तो आता है कैश इनफ्लो. कैश इनफ्लो में से अगर डेप्रीसिएशन को माइनस कर दिया जाए तो हमें हर साल का नेट प्रॉफिट मिलेगा. 10 लाख इज द कैश आउटफ्लो. स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो एक साल का डेप्रीसिएशन 2 लाख रुपए. तो हमें हर साल में से 2 लाख रुपए लेस करने डेप्रीसिएशन के. द रिजल्ट इज नेट प्रॉफिट. फिर उसका एवरेज करेंगे और उसे ARR को कैलकुलेट करेंगे. सेम इसी तरह से प्रपोजल सेकंड में भी हमें करना पड़ेगा. तो ARR सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं नेट प्रॉफिट की. कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट. प्रपोजल फर्स्ट का, प्रपोजल सेकंड का. ईयर 1 2 3 4 5. प्रपोजल फर्स्ट का 320 में से अगर हम लेस करेंगे 2 लाख तो ये होगा 1,20,000 नेट प्रॉफिट प्रपोजल फर्स्ट का. फिर 2,05,000, फिर 3,10,000, देन 1 लाख और नील. 1 लाख और नील. फिर सेकंड में भी फर्स्ट ईयर माइनस में 95,000, फिर प्लस के 1 लाख, देन 210, फिर 390 एंड लास्ट इज 2 लाख. 1,20,000 plus 2,05,000
plus 3,10,000 plus 1 lakh divided by 5. 1,47,000 is average net profit. Minus फिर 2 lakh plus 390 plus 210 plus 1 lakh minus 95,000 divided by 5. 1,61,000. ARR equals to average net profit after tax divided by average investment multiply by 100. इसका वैल्यू 0 है तो फर्स्ट प्रपोजल में एवरेज नेट प्रॉफिट इट इज एवरेज राइट 1,47,000 इज एवरेज फर्स्ट का और सेकंड का 161. 1,47,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इज 5 lakh. 10 lakh आउटफ्लो इसका वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज इज 5 lakh. 1,47,000 divided by 5 lakh multiplied by 100 it is 29.4%. Second, 1,61,000 divided by 5 lakh multiplied by 100 32.2%. 32.2%. Okay. Now next question number 6. A company is considering an investment proposal to install a new milling controls. The project will cost rupees 50,000. It is outflow. The facility has a life expectancy of 5 years. Isका value 0. The company tax rate 55%. Firm use straight line depreciation. The estimated profit before depreciation from the proposed investment proposal are as follows. आपको profit before depreciation दे रखा है. आपको पे बैक ARR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न NPV और PI को कैलकुलेट करना है. डिस्काउंट रेट PV फैक्टर की रेट 10% है. कैश आउटफ्लो इज 50,000 rupees. Now we calculate present value of cash inflow. Year, profit before depreciation, profit before tax, net profit, cash inflow, PV factor और present value. Year 1, 2, 3, 4, 5. 10,000, 11,000, 14,000, 15,000 and 25,000. Every year depreciation is 10,000. Profit before tax nil, 1,000, 4,000, 5,000 and 15,000. Tax rate is 55%. Nil, 550, 4,000, 55% is 2,200, 5,000, 55% is 2,750, 15,000, 55% is 8,250. Net profit nil, 450, 1,800, 2,250 and 6,750. कैश इनफ्लो डेप्रिसिएशन को वापस ऐड करना है 10,000, 10,450, 11,800, 12,250 and 16,750. P factor rate 10%, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.621. 10,000 multiplied by 0.909 it is 9090. 10,450 multiplied by 0.826 8632. 11,800 multiplied by 0.751 it is 8862. 12,250 multiplied by 0.683 8367 and 16750 multiplied by
0.621 10402 45352. करेक्ट। सबसे फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड, आउटफ्लो कितना है 50,000, इनफ्लो को क्यूमुलेटिव करते हैं। फर्स्ट ईयर 10,000, सेकेंड ईयर 10,450, थर्ड ईयर 11,800, फोर्थ ईयर 12,250, 4 ईयर प्लस अब कम है इसमें 5,500 डिवाइडेड बाय फिफ्थ ईयर में 16,750, इट इज 4.33 ईयर्स। सेकेंड कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। एवरेज नेट प्रॉफिट फर्स्ट ईयर नील, सेकेंड ईयर 450, थर्ड ईयर 1800, फोर्थ ईयर 2250 and fifth year 6750 divided by 5, it is 2250. Average investment is 25,000 multiply by 100. 2250 divided by 25,000 multiply by 100, it is 9%. Then we have to calculate internal rate of return IRR. Year 1 2 3 4 5 कैश इनफ्लो हमने कैलकुलेट किया 10,000 10,450, 10,000 10,450, देन 11,800, 12,250 एंड 16,750। जब हमने इसको 10% की रेट से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया, इट इज़ 45352 और हमें रिक्वायरमेंट है 50,000। रेट को हमें कम करना पड़ेगा, तो हम 10% से कम करते हैं 5%। पीवी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 1 डिवाइडेड बाय 1.05, 0.952, 0.907, 0.864, 0.823 and 0.784, 9520, 10,450 multiplied by 0.907, 9478, 11,800 multiplied by 0.864, 10195, 12,250 multiplied by 0.823, 10082 and 16750 multiplied by 0.784, 13132. It is 52,407. IRR equals to 5% प्लस 5 और 10 के बीच में 5% का गैप, 5 की पीवी और 10 की पीवी के बीच में 7055 का गैप। हमने 5 को बेस लिया, यहाँ से 50,000 का डिफरेंस है 2407। So 5 divided by 7055 multiplied by 2407, it is 6.71% IRR। फिर हमें कैलकुलेट करना है एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एनपीवी इक्वल्स टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लो 45352 minus 50,000, it is negative 45352 minus 50,000, it is negative 4648. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो
divided by present value of cash outflow. 45352 divided by 50,000. It is 0.907. Okay. Now next question, question number 7. C Limited is considering investing in a project. The expected original investment in the project will be rupees 2 lakh. The life of the project will be 5 years with no scrap value. The expected net cash inflow after depreciation but before tax. आफ्टर डेप्रीसिएशन बट बिफोर टैक्स का मतलब हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी एज फॉलोज. आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखे हैं. प्रोजेक्ट विल बी डेप्रीसिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट. 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड है. द कंपनी इज सब्जेक्ट टू 30% टैक्स रेट. आपको पे बैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एनपीवी और एनपीवी इंडेक्स. एनपीवी इंडेक्स का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 10% पे, और आईआरआर को कैलकुलेट करना है. कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो इक्वल्स टू रुपीज 2 lakh. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ईयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है 85,000, 1 lakh रुपीज, 80,000, 80,000 और 40,000. टैक्स की रेट क्वेश्चन में दे रखी है आपको 30%. 85,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, 25,500. नेट प्रॉफिट 59,500. 1 lakh का 30% 30,000 और 70,000. 80,000 का 24,000 एंड 56,000. 24,000 एंड 56,000. 12,000 एंड 28,000. फिर हम कैलकुलेट करेंगे कैश इनफ्लो. इसमें डेप्रीसिएशन को ऐड करेंगे. 2 lakh का 20%, एवरी ईयर डेप्रीसिएशन इज 40,000. तो ये होगा 99,500, 1,10,000, 96,000, 96,000 एंड 68,000. अब यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जिसकी रेट हमें दे रखी है 10%, और कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621. 99,500 multiplied by 0.909, it is 90,446. 1,10,000 multiplied by 0.826, it is 90,860. 96,000 multiplied by 0.751, it is 72096. 96,000 multiplied by 0.683, it is 65568. And 68,000 multiplied by 0.621, 42228. And total is 3,61,198. Correct. Now we calculate payback period and ARR. पे बैक पीरियड को सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं. पे बैक पीरियड आउटफ्लो है 2 lakh, इनफ्लो फर्स्ट ईयर 99,500, 99,500 प्लस 1,10,000. तो यहाँ तो 2 साल में कवर हो जाता है. 1 ईयर प्लस 1,05,000 divided by 1,10,000. 1,05,000 divided by 1,10,000, 1.91 year. ARR एवरेज नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 59,500 प्लस
70,000 plus 56,000 plus 56,000 plus 28,000 divided by 5, 53,900, and average investment is 1 lakh. Multiply by 100 equals to 53.90%. बी पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है एनपीवी इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. इट इज़ 161198. हमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. 361198 डिवाइडेड बाय 2 lakh equals to 1.806. अब हमें कैलकुलेट करना है इसमें लास्ट पॉइंट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. इसमें एनपीवी बहुत ज़्यादा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो बहुत ज़्यादा है और आउटफ्लो बहुत कम है, तो हमें रेट बहुत हाई साइड में लेनी होगी. कैश आउटफ्लो इक्वल्स टू 2 lakh. year wise cash inflow, first, second, third, fourth, fifth. Cash inflow, first year 99,500, second year 1,10,000, third year 96,000, fourth year 96,000, and fifth year 68,000. करेक्ट. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो हाई पीवी फैक्टर की रेट से 40% डायरेक्टली. 40% के पीवी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1.4, 0.714, 0.510, 0.364, 0.260, 0.186. 99,500 multiplied by 0.714, 1,10,000 multiplied by 0.510, 96,000 multiplied by 0.364, 96,000 multiplied by 0.260, and 68,000 multiplied by 0.186, and it is 1,99,695 और आउटफ्लो है 2 लाख. तो आप यहाँ पर लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली IRR इज 40%, क्योंकि केवल 300 रुपये का डिफरेंस आ रहा है. IRR अप्रोक्स 40%. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. PR Engineering Limited is considering the purchase of a new machine which will carry out some operation which are at present performed by manual labor. The following information related to the two alternative model MX and MY are available. Machine की cost, expected life और scrap value. Net income before depreciation and tax, it means profit before depreciation दे रखा है. Corporate tax rate is 30%. Company required return on investment is 10%. Depreciation straight line basis आपको payback पता करना है. एनपीवी कैलकुलेट करना है और बताना है विच प्रपोजल वुड यू रिकमेंड एंड वाई. तो सबसे पहले मशीन एमएक्स का कैलकुलेट करते हैं. पे बैक और एनपीवी को ही कैलकुलेट करना है. तो यहाँ पर ईयर, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, नेट प्रॉफिट, कैश इनफ्लो, पीवी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6. प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन 2,50,000, 2,30,000, 1,80,000, 1,80,000, 1,60,000. आउटफ्लो है 8 लाख. स्क्रैप वैल्यू 20,000. 8 lakh minus 20,000 divided by 6. Every year depreciation is 1,30,000. 1,30,000. Correct. Now we calculate profit before tax.
Profit before tax 1,20,000, 1,50,000, 70,000, 50,000 and 30,000. Tax rate is 30%. 36,000, 30,000, 15,000, 21,000, 15,000 or 9,000. Net profit 84,000, 70,000, 35,000, 49,000, 35,000 and 21,000. डेप्रीसिएशन को वापस ऐड करते हैं 130 एवरी ईयर, देन इट इज 2,14,000, 2 lakh, 1,65,000, 1,79,000, 1,65,000 एंड 1,51,000. पी फैक्टर की रेट यहाँ दे रखी है 10%, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621 and 0.564. Now present value 2,14,000 multiplied by 0.909, 2 lakh multiplied by 0.826, 1,65,000 multiplied by 0.751, 1,79,000 multiplied by 0.683, 1,65,000 multiplied by 0.621 and 1,51,000 multiplied by 0.564. Total is 7,93,527. Now we calculate for machine MY. फिर उसके बाद हम पे बैक और एनपीवी को कैलकुलेट करेंगे. ईयर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6. Profit before depreciation 273,60, 273,60,000, 380,280, 380,280, then 160 and 1,85,000. Depreciation. मशीन की कॉस्ट है 10,20,000 minus scrap value 30,000 divided by 6, it is 1,65,000 depreciation every year. ऊपर एक चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 ईयर को लेना पड़ेगा टर्मिनल कैश इनफ्लो के लिए, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनल कैश इनफ्लो है. सबसे लास्ट ईयर में हमें स्क्रैप वैल्यू मिल रही है 20,000 रुपीज़, तो इस 20,000 को मशीन MX में भी कंसिडर करना पड़ेगा 20,000. लास्ट ईयर का पी फैक्टर 0.564, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.564 और इसको ऐड करेंगे 7,93,527 में. इट इज़ 8,04,807. 165, 165, 1,65,000, 1,65,000. Now profit before tax 2,70,000 minus 165, 1,05,000. It is 3,60,000 minus 165, 1,95,000. 3,80,000 minus 165, it is 2,15,000. 1,15,000. It is 1,60,000. It is 2,60,000. 2,60,000 and 185. Correct? 2,60,000 minus 1,65,000, 95,000, and it is 20,000. 270, 360, 380, 280, 260 and 185. Okay. Now tax. Tax rate is 30%.
30% is tax rate. 1,05,000 multiplied by 30%, 31,500, and then net profit 73,500. इसमें ऐड कर देते हैं 165, कैश इनफ्लो 238,500. इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पीवी फैक्टर से तो आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू. फिर 1,95,000 का 30% है 58,500. नेट प्रॉफिट 136,500 प्लस 165 कैश इनफ्लो इज 3,01,500. Then 2,15,000 multiplied by 30%, 64,500. Net profit 1,50,500 plus 165, it is 3,15,500. 1,15,000 multiplied by 30%, it is 34,500. Net profit 80,500 plus 1,65,000, it is 245,500. 95,000 multiplied by 30%, 28,500. Net profit 66,500 plus 1,65,000, it is 231,500. 20,000 multiplied by 30%, it is 6,000. Net profit 14,000 plus 165 cash inflow is 1,79,000. P factor 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, 0.564. टर्मिनल वैल्यू यहाँ पर है 30,000 स्क्रैप वैल्यू. तो यहाँ हम 6 ईयर को वापस लिखेंगे. इट इज़ 30,000. लास्ट ईयर का पी फैक्टर 0.564. 2,38,500 multiplied by 0.909. 3,01,500 multiplied by 0.826. 3,15,500 multiplied by 0.751. 2,45,500 multiplied by 0.683. 2,31,500 multiplied by 0.621. and 30,000 multiplied by 564 and 1,79,000 multiplied by 0.564. टोटल इज़ 11,32,090. मैं केवल टोटल लिख रहा हूँ, बाकी आपको एग्ज़ाम में तो पूरी पीवी में एक एक अमाउंट को लिखना पड़ेगा. ठीक है. एनपीवी सबसे पहले हमें पे बैक कैलकुलेट करना है. ए पॉइंट में पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले हम मशीन एमएक्स का पे बैक कैलकुलेट करते हैं. आउटफ्लो कितना है 8 लाख. फर्स्ट ईयर इनफ्लो 2,14,000 प्लस सेकेंड ईयर 2 लाख, थर्ड ईयर 165 और फोर्थ ईयर 179. फिफ्थ ईयर से ज़्यादा हो जाएगा तो 4 ईयर प्लस अब डिफरेंस है 42,000 और फिफ्थ ईयर का जो कैश इनफ्लो है वो है 165,000. इट इज 4.25 ईयर. मशीन एम वाई इक्वल्स टू मशीन एम वाई का आउटफ्लो है 10,20,000. 10,20,000 में फर्स्ट ईयर हमें 238,500, सेकेंड ईयर 3,01,500, थर्ड ईयर 3,15,500, फोर्थ ईयर 2,45,500. ये ज़्यादा हो गया माइनस 245,500. 3 साल में हमें मिले 8,55,500 माइनस 10,20,000. 10,20,000. रिमेनिंग बचा 164,500. 164,500 और फोर्थ ईयर का इन्फ्लो है 245,500. 245,500. It is 3.67 ईयर. देन वी हैव टू कैलकुलेट एनपीवी. सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं एमएक्स का.
Present value of cash inflow 804,807. 804,807 minus outflow is 8 lakh. 8 lakh. It is 4807. Machine MY 11,32,090 minus 10,20,000. It is 1,12,090. 1,12,090. अब कौन सी मशीन हमें परचेज करनी चाहिए? तो एज पर एनपीवी MY और एज पर पे बैक पीरियड BMY. पे बैक पीरियड जिसका कम होता है, एनपीवी जिसकी ज़्यादा होती है. कौन सी मशीन हमें परचेज करनी है? और एज पर डिसीजन मेथड एनपीवी के हिसाब से भी MY और पे बैक के हिसाब से भी MY. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और वो है क्वेश्चन नंबर 9th. Question number 9th है SS Limited is considering the purchase of a new automatic machine which will carry out some operations which are at present performed by manual labor. NM1, NM-A1, NM-A2. Two alternative models are available in the market. The following details are collected. Machine की cost, machine की life, estimated saving in wages per annum, estimated saving in scrap per annum, estimated additional cost of indirect material per annum, estimated additional cost of indirect labor per annum, estimated additional cost of repair and maintenance per annum. Depreciation will be charged on straight line method. Tax rate is 30%. Expected rate of return may be 12%. You are required to evaluate the alternative by calculating the payback period, average rate of return and profitability index. सबसे पहले हम यहाँ पर NM-A1 की बात करते हैं. NM-A1 इसमें कैश आउटफ्लो है ₹20 लाख. देन ईयर वाइज 1 to 5. प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन. NM1 को यूज करने से वेजेज एवरी ईयर 7 लाख से सेव होगी और स्क्रैप में 60,000 की सेविंग होगी एवरी ईयर. मगर ये 3 एडिशनल एक्सपेंडिचर लगेंगे, -30,000, -40,000, -45,000. तो प्रॉफिट, एडिशनल प्रॉफिट हमें मिलेगा 6,45,000 का. डेप्रीसिएशन 20 लाख मशीन की कॉस्ट है. Life 5 year, every year depreciation is 4 lakh. Profit before tax is 2,45,000. Tax rate is 30%. 2,45,000 multiplied by 30%, it is 73,500. Net profit after tax is 171,500 and cash inflow every year is plus 4 lakh 571,500. इसको हम पीवी फैक्टर क्यूमुलेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी रेट है 12%. तो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिलेगी. 12% पे 1 डिवाइडेड बाय 1.12, it is 3.605. 571,500 multiplied by 3.605, it is 20,60,258. 20,60,258. सेम इसी तरह से हम NM-A2 में भी कैलकुलेट करते हैं. कैश आउटफ्लो equals to ₹25 lakh. Year wise 1 to 5. Profit before depreciation. यहाँ पर सेविंग एनुअल हो रही है 10 लाख की और एडिशनल कॉस्ट है 10 लाख में से हम माइनस करेंगे 90,000
माइनस करेंगे 50,000, माइनस करेंगे 85,000, it is 7,75,000 profit before depreciation. Now additional depreciation, it is 5 lakh. मशीन की कॉस्ट 25 लाख, स्क्रैप वैल्यू नहीं है, 5 ईयर लाइफ, तो हर साल का डेप्रीसिएशन हो गया 5 लाख. प्रॉफिट बिफोर टैक्स इट इज़ 2,75,000. टैक्स 275,000 का 30% टैक्स 82,500. नेट प्रॉफिट 192,500. डेप्रीसिएशन को वापस ऐड करेंगे 5 लाख, तो ये होगा 692,500. ये एनुअल कैश इनफ्लो होगी. इसको 12% के पीवी फैक्टर 3.605 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो 3.605 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 24,96,463. करेक्ट. सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड. एवरी ईयर कैश इनफ्लो इज इक्वल, तो डायरेक्टली हम कैश इनफ्लो पे बैक पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं. सबसे पहले A1 का पे बैक पीरियड कैलकुलेट करते हैं. यहाँ पर आउटफ्लो है 20 लाख और एवरी ईयर कैश इनफ्लो इज 571,500. 20 lakh divided by 571,500, it is 3.499 year. Then A2 NMA2, यहाँ पर आउटफ्लो है 25 लाख एंड एवरी ईयर कैश इनफ्लो इज 692,500. 25 lakh divided by 692,500, it is 3.61 year. Now we have to calculate ARR. A1 average net profit. Net profit is 171,500 average and average investment is 10 lakh. Multiply by 100, 17.15%. Now A2 average net profit is 192,500 and average investment is 12,50,000 multiplied by 100. 192,500 divided by 12,50,000 multiplied by 100, it is 15.40%. Now we have to calculate profitability index. A1 PV of cash inflow 2060,258. 2060,258 PV of cash inflow divided by PV of cash outflow 20 lakh. 2060,258 divided by 20 lakh, it is 1.03. A2 PV of cash inflow 2496. 2496 463 divided by cash outflow 25 lakh. 2496 463 divided by 25 lakh, it is 0.998. Okay. Now we solve question number 10th. XYZ Limited is planning to introduce a new product with a project life of 8 years. The project is to be set up in a special economic zone, qualify for one-time tax-free subsidy from the state government of rupees 25 lakh on capital investment. Initial equipment 1.75 crore, additional equipment 12,50,000 will be purchased at the end of the third year from the cash inflow of this year. At the end of the 8th year, the original equipment will have no resale value, but additional equipment can be sold for rupees 125. A working capital of rupees 20 lakh will be required and it will be released at the end of the 8th year. The project will be financed with sufficient amount of equity capital. The sales volume over the 8 year have been estimated as first year, second year, third year, 4th to 5th and 6th to 8. Sales की unit दे रखी है every year. Selling price 120 per unit, variable cost 60%, fixed cost 18 lakh per year.
Loss of any year will be set off from the profit of subsequent 2 year. The company is subject to 30% tax rate and consider 12% which is P factor rate. The company follow straight line method of depreciation. आपको NPV कैलकुलेट करना और बताना है कि हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है. सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं PV ऑफ कैश आउटफ्लो. PV ऑफ कैश आउटफ्लो. इक्विपमेंट की कॉस्ट है 1.75 करोड़. 1,75 लाख की कॉस्ट का इक्विपमेंट है, प्लस एडिशनल इक्विपमेंट. एडिशनल इक्विपमेंट हम परचेज कर रहे हैं 12,50,000 बट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. 12,50,000 और थर्ड ईयर का पी फैक्टर रेट है 12%. 1 डिवाइडेड बाई 1.12 0.712. 12,50,000 मल्टीप्लाई बाई 0.712 8,90,000. वर्किंग कैपिटल, हम इसमें वर्किंग कैपिटल को इन्वेस्ट करेंगे और वो वर्किंग कैपिटल है टोटल 20 लाख रुपीस की. इसमें से हम लेस करेंगे सब्सिडी. सब्सिडी हमें मिलेगी 25 लाख रुपीस की और इसका टाइम पीरियड नहीं दे रखा था. हम ये मानते हैं कि सब्सिडी हमें इमीडिएटली मिल जाएगी 25 लाख रुपीस की. 25 लाख रुपीस. सो 1,75 लाख प्लस 8,90,000 प्लस 20 लाख माइनस 25 लाख. इट इज़ 1,78,90,000. Now PV of cash inflow. Present value of cash inflow. Year, sales, variable cost, fixed cost, depreciation. Result is profit before tax, net profit, cash inflow, PV factor and present value. Year, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 to 5 का एक ले सकते हैं और 6 to 8 का एक ले सकते हैं. फर्स्ट ईयर सेल्स इज 72,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस 120. इट इज 86,40,000. 86.4 lakh. Second year it is 1,08,000 multiplied by 120. It is 129.6 lakh. 129.6 lakh. Third year it is 2,60,000 multiplied by 120. It is 312 lakh. Fourth year unit is 2,70,000 multiplied by 120. It is 324 lakh. And 6 to 8 it is 1,80,000 multiplied by 120. It is 216 lakh. Variable cost is 60%. 86.4 का 60% 51.84. 129.6 का 60% 77.76. 312 का 60% 187.20. 324 का 60% 194.40 एंड 216 का 60% होता है 129.60. Fixed cost every year is 18 lakh. First year, second year, third year, fourth, fifth और 6, 7, 8. Depreciation हमारे पास अभी एसेट है 1.75 करोड़ की, मगर इस पर गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी दी, सो कॉस्ट ऑफ एसेट्स इज 1.5 करोड़ 150 लाख और इसकी स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है और इसकी लाइफ होगी टोटल 8 ईयर डिवाइडेड बाय 8. फर्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन इज 18.75, सेकेंड ईयर 18.75, थर्ड ईयर 18.75. बट फ्रॉम फोर्थ ईयर एक और स्टार्ट हो जाएगा डेप्रीसिएशन. ये जो हमने मशीन परचेज की है 12,50,000 रुपीज़ की, 12,50,000 जिसकी स्क्रैप वैल्यू हमें दे रखी है 1,25,000 और उसकी लाइफ है 5 ईयर. सो डेप्रीसिएशन इज 2.25 लाख. 2.25 लाख प्लस 18.75 लाख
ये हो गया 21 लाख, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 86.4 माइनस 51.84 माइनस 18 माइनस 18.75, इट इज माइनस के 2.19। then 129.6 minus 77.76 minus 18 minus 18.75, it is 15.09। then 312 minus 187.2 minus 18 minus 18.75, it is 88.05। 324 minus 194.4 minus 18 minus 21, it is 90.60। 216 minus 129.6 minus 18 minus 21, 47.40। फर्स्ट ईयर लॉस आ रहा है 2.1, टैक्स नहीं लगेगा और ये होगा माइनस के 2.19। सेकेंड ईयर प्रॉफिट है 15.09, उसमें वो लॉस एडजस्ट होगा 2.19, फिर उस पर टैक्स लगेगा और टैक्स की रेट है 30%। मल्टीप्लाई बाय 30%, इट इज 3.87। 15.09 minus 3.87, it is 11.22। 88.05 multiply by 30%, 26.42, and it is 61.64, 63. 90.6 multiply by 30%, it is 27.18, and it is 63.42. 47.4 multiply by 30%, 14.22, and it is 33.18। कैश इनफ्लो माइनस के 2.15 और डेप्रिसिएशन 18.75, it is 16.56। second year 18.75 plus 11.22, it is 29.97। then 18.75 plus 61.63, it is 80.38। then 21 plus 63.42, 84.42। then 21 plus 33.18, it is 54.18। now PV factor, P factor rate is 12%, 1 divided by 1.12, 0.893, 0.893। .797, 0.712। यहाँ हमें फोर्थ और फिफ्थ ईयर के पी फैक्टर को ऐड करना पड़ेगा। विच इज 1.203, और यहाँ हमें सिक्स, सेवन्थ और एट्थ के पी फैक्टर को ऐड करना पड़ेगा। टू पॉइंट फाइव सिक्स, 2.566। it is 1 point, it is not 2.566, it is 1.363, करेक्ट। टर्मिनल वैल्यू के लिए 8 ईयर को वापस लिखेंगे। टर्मिनल वैल्यू में हमें स्क्रैप वैल्यू मिलेगी मशीन की विच इज़ 1.25 लाख, और वर्किंग कैपिटल 20 लाख की हमें मिल जाएगी, तो टोटल 21.25 लाख। 21.25 लाख, इसमें केवल लास्ट ईयर का पी फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1.12 विच इज 0.404। पीवी कैलकुलेट करते हैं। 16.56 मल्टीप्लाई बाय 0.893, 29.97 मल्टीप्लाई बाय 0.797,
80.38 multiplied by 0.712, 84.42 multiplied by 1.203, 54.18 multiplied by 1.363, and 21.25 multiplied by 0.404, and it is 279.89. NPV equals to present value of cash inflow 279.89 minus present value of cash outflow, which is 1.789. 1.789. It is 279.89 minus 1.789. It is 178.9. 178.9. 178.9. 100.1. NPV प्लस में, so project should be accepted, right? अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. National Bottling Company is contemplating to replace one of its bottling machine with a new and more efficient machine. With a new and more efficient machine, the old machine has a cost value of 10 lakh and useful life of 10 years. The machine was bought 5 years back. The company does not expect to realize any return from scrapping the old machine at the end of 10 years, but presently if it is sold to another company in the industry, National Bottling Company would receive rupees 6 lakh for it. The new machine has a purchase price of 20 lakh. It has an estimated scrap value 2 lakh and has useful life of 5 years. The new machine will have a greater capacity and annual sales are expected to increase from 10 lakh to 12 lakh. सेल्स 10 लाख से 12 लाख हो जाएगी, 2 लाख बढ़ेगी, और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी विद द न्यू मशीन विल आल्सो प्रोड्यूस सेविंग ऑफ रुपीज 2 लाख. कॉस्ट भी 2 लाख से कम हो जाएगी. सेल्स 2 लाख से बढ़ेगी, कॉस्ट 2 लाख से कम हो जाएगी. इट मीन्स एडिशनल प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन इज रुपीज 4 लाख. Depreciation is on straight line basis over a 5-year life. Cost of capital 8% and 50% tax PV factor for an annuity for 5 year 8% 3.993 और 5th year का 0.681. Capital gain is taxable should the company replace the old machine. Plant replacement का क्वेश्चन है, तो यहाँ सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन. कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, नई मशीन की कॉस्ट है 20 लाख रुपीज लेस सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन. ओल्ड मशीन को अगर आज हम बेचेंगे तो 6 लाख रुपीज हमें मिलेंगे, तो ये हो गया 14 लाख. मगर पुरानी मशीन को बेचने से प्रॉफिट हो रहा है, लेस इसमें ऐड करना है टैक्स ऑन कैपिटल गेन. टैक्स ऑन कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे? पुरानी मशीन की सेल वैल्यू है 6 लाख और उसकी जो बुक वैल्यू है, हमने उसको परचेज किया था 10 लाख रुपीज़ में 5 साल पहले, और उसकी 5 साल लाइफ और है. टोटल उसकी लाइफ 10 साल है. उसकी स्क्रैप वैल्यू 0 है. इसका मतलब उसका हर साल का डेप्रीसिएशन होता है 1 लाख रुपए. 5 साल पहले खरीदा था तो 5 लाख रुपए डेप्रीसिएशन लग चुका है. 10 लाख में परचेज किया था, 5 लाख उस पर डेप्रीसिएशन हम अभी तक चार्ज कर चुके हैं, तो आज उसकी बुक वैल्यू 5 लाख है. हम उसको बेच रहे हैं 6 लाख में, तो 1 लाख रुपए का उस पर हमें प्रॉफिट, और प्रॉफिट पे हमें देना पड़ेगा टैक्स. टैक्स ऑन प्रॉफिट 50% टैक्स की रेट है, तो 1 लाख का 50% होता है 50,000. ये आउटफ्लो में ऐड हो जाएगा. नेट आउटफ्लो इज 14,50,000. करेक्ट. नाउ वी कैलकुलेट पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, जिसमें हम सबसे पहले एनुअल एडिशनल पीबीडी को कैलकुलेट करते हैं. एनुअल एडिशनल प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन. एनुअल इंक्रीज इन सेल्स, annual increase in sales is 2 lakh rupees. Annual saving of cost
annual saving of expenses is also rupees 2 lakh. So every year profit will increase by rupees 4 lakh. Now annual additional depreciation. Annual depreciation of new machine. नई मशीन की कॉस्ट है 20 लाख, उसकी स्क्रैप वैल्यू है 2 लाख और उसकी लाइफ है 5 ईयर. 20 लाख माइनस 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 3,60,000. नई मशीन का एक साल का डेप्रीसिएशन. एनुअल डेप्रीसिएशन ऑफ ओल्ड मशीन का एक साल का डेप्रीसिएशन है 1 लाख रुपीज. सो एनुअल एडिशनल डेप्रीसिएशन इज 2,60,000. नाउ एडिशनल टर्मिनल वैल्यू. नई मशीन की स्क्रैप वैल्यू है 2 लाख. टर्मिनल वैल्यू ऑफ न्यू मशीन इज 2 लाख. पुरानी मशीन की टर्मिनल वैल्यू है 0, nil. So additional terminal value is 2 lakh rupees. Now we calculate present value of cash inflow. Year 125. PBD, annual additional PBD is 4 lakh. Depreciation, additional depreciation is 2,60,000. Profit before tax additional is 1,40,000. Tax is 70,000. Additional net profit is 70,000. Additional cash inflow is 3,30,000. इसमें वापस डेप्रीसिएशन जोड़ा नेट प्रॉफिट में तो 330. पीवी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू. एडिशनल टर्मिनल वैल्यू को लेंगे 5th ईयर में और वो होगा 2 लाख रुपीज. 5 साल के पी फैक्टर की टोटल दे रखी है 3.993 और केवल 5th ईयर का पी फैक्टर हमें यहाँ दे रखा है 0.681. 3,30,000 multiplied by 3.993, it is 13,17,690, and 2 lakh multiplied by 0.681, 136,200. Total 1317690. It is 1453890, and cash outflow is 14,50,000. So NPV equals to PV of cash inflow 1453890 minus 14,50,000, that is 3890 NPV plus. So plant should be replaced. Last question, ये भी plant replacement का है. Question number 12. A company has a machine which has been in operation for 2 years. Remaining life is 10 years. No scrap value. Current market value 1 lakh. Management is considering a proposal to purchase as improved model of a machine which gives increased output. The relevant particulars: existing or new. Existing की purchase price 240, नई की 4 lakh. Estimated life 12, नई की 10. स्क्रैप वैल्यू दोनों की nil. Annual operating hours 2000. Selling price per unit 10. Output per hour 15-30 units. Material cost per unit 2 rupees. Labor cost per hour 20 or 40. Consumable store per annum 2000 or 5000. Repair and maintenance 9,000, 6,000. Working capital 25,000. Existing pay or new pay 40,000. Company straight line methods 50% tax should the existing machine be replaced. Assume required rate of return 5 and that loss on sale of assets is tax deductible. It is 15%. This rate is 15% and the loss on sale of assets is tax deductible. सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन. कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन. नई मशीन की कॉस्ट है 4 लाख रुपीज लेस सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन. ओल्ड मशीन को अगर आज हम सेल करेंगे तो हमें मिलेंगे 1 लाख रुपए प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल ओल्ड पर 25, न्यू पे 40, तो हमें एडिशनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी 15,000. इसमें हम
लेस करेंगे टैक्स बेनिफिट ऑन कैपिटल लॉस, ऑन कैपिटल लॉस। पुरानी मशीन की कॉस्ट, पुरानी मशीन की कॉस्ट 2,40,000 है, 12 ईयर लाइफ है, तो हमने इसके ऊपर 2 साल का डेप्रीसिएशन अभी चार्ज किया होगा 40,000। 240 डिवाइडेड बाई 12, 1 साल का 20,000 डेप्रीसिएशन होता है, 2 साल के 40,000। तो इसकी जो बुक में वैल्यू है, बुक वैल्यू है 2 लाख रुपए, हम उसको सेल वैल्यू, हम उसको 1 लाख रुपए में सेल कर रहे हैं। इट मीन्स देयर इज लॉस, लॉस इज 1 लाख रुपीज, और लॉस पे हमें होगा टैक्स का बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट। टैक्स की रेट है 50%, तो 1 लाख रुपए का 50% होता है 50,000, जो हमें टैक्स का बेनिफिट होगा, मतलब यहाँ से होगा माइनस। तो 4 लाख में से हमें माइनस करना है 1 लाख, प्लस करना है 15,000 और माइनस करना है 50,000। इट इज़ 2,65,000। नाउ वी कैलकुलेट एनुअल एडिशनल पीबीडी, एनुअल एडिशनल प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन। ओल्ड प्लांट पर और न्यू प्लांट पर हम 1 साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और उसे एनुअल एडिशनल पीबीडी को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो सेल्स। ओल्ड प्लांट पर एवरी ईयर 2,000 वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय 15, 30,000 यूनिट। सबसे पहले तो सेल्स यूनिट लिखते हैं 30,000। न्यू मशीन पर भी वर्किंग तो 2,000 आवर्स है, बट यहाँ पर आर 30 यूनिट्स बनती है, इट मीन्स 60,000 यूनिट्स। नाउ सेल्स रुपीज, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 10 दोनों ही केस में, तो यहाँ सेल्स होगी 3 लाख, यहाँ सेल्स होगी 6 लाख एनुअल, लेस मटेरियल की कॉस्ट, लेस लेबर की कॉस्ट, लेस कंज्यूमेबल स्टोर की कॉस्ट, और लेस रिपेयर और मेंटेनेंस। जो यहाँ पर 4 एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, हम चारों लेस करेंगे तो हमें एनुअल प्रॉफिट मिलेगा ओल्ड पर और न्यू पर, उससे हमें एडिशनल प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल की कॉस्ट है 2 रुपीज़ पर यूनिट दोनों ही केस में, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 60,000, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 1,20,000। लेबर की कॉस्ट है 20 रुपीज़ पर आवर, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 20 40,000, और यहाँ हो जाएंगे 80,000, 40,000 और यहाँ होंगे 80,000। फिर कंज्यूमेबल स्टोर 2,000 और 5,000, 2,000 और 5,000, और रिपेयर और मेंटेनेंस की कॉस्ट 9,000 और 6,000, 9,000 और 6,000। 3 लाख रुपी सेल्स माइनस 60,000 माइनस 40,000 माइनस 2,000 माइनस 9,000, it is 1,89,000 profit on old machine every year. Then 6 lakh minus 1,20,000 minus 80,000 minus 5,000 minus 6,000, it is 3,89,000. So annual additional profit before depreciation is rupees 2 lakh. Now we calculate annual additional depreciation. Annual additional depreciation, annual depreciation of न्यू मशीन, और हम कैलकुलेट करेंगे एनुअल डेप्रीसिएशन ऑफ ओल्ड मशीन। नई मशीन का 1 साल का डेप्रीसिएशन, मशीन की कॉस्ट कितनी है 4 लाख, स्क्रैप वैल्यू 0, लाइफ कितनी है 10 ईयर, इट मीन्स एवरी ईयर डेप्रीसिएशन इज 40,000, और पुरानी मशीन का 1 साल का डेप्रीसिएशन है 20,000। एनुअल एडिशनल डेप्रीसिएशन इज 20,000। नाउ एडिशनल टर्मिनल वैल्यू, दोनों की स्क्रैप वैल्यू 0 है, बट यहाँ पर एडिशनल वर्किंग कैपिटल, एडिशनल वर्किंग कैपिटल विच इज 15,000, ये होगी एडिशनल टर्मिनल वैल्यू। नाउ वी कैलकुलेट पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, ईयर 1 to 10, PBD every year additional 2 lakh, depreciation every year additional 20,000, PBT
Annual PBT is 1,80,000. Tax rate is 50%. So additional tax is 90,000. Net profit is 90,000. Now cash inflow 90,000 और डेप्रिसिएशन को ऐड किया 20,000, 1,10,000. पीवी फैक्टर की कैलकुलेट करते हैं वैल्यू और उससे आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. 10th ईयर को एक बार वापस लिखेंगे टर्मिनल कैश इनफ्लो के लिए. टर्मिनल कैश इनफ्लो इज 15,000. यहाँ पर रेट है 15%. 1 डिवाइडेड बाय 1.15. टेन ईयर का पी फैक्टर की टोटल 5.019 और केवल 10th ईयर का 0.247. 1,10,000 multiplied by 5.019, it is 552,090, and 15,000 multiplied by 0.247, it is 3,705, plus 552,090, it is 555,795. NPV, present value of cash inflow 555,795 minus present value of cash outflow 2,65,000. 2,65,000. NPV is 290,795. Plant should be replaced. और ये हमने सॉल्व किया हमारा क्वेश्चन टेस्ट पेपर कैपिटल बजटिंग चैप्टर का. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके, थैंक यू, बाय बाय.